Namaste Gurukulians, how are you students? Hope you will be fine. I am Subhas. Today we will study class 11 accountancy and as you know that chapter 5th journal is going on. So we will discuss part 8th video of this chapter, journal entries. So I think students you have solved the numericals up to 16. Hope you have completed. Now the next question is 17. This is page number 9.66. Question from exercise 17. Enter the following transactions in the journal of Arun Govil and Company. To prepare the format first. Write on the top, journal of Arun Govil and Company. Date, particulars, ledger folio, amount debit, credit. 2018 June 1. Arun Govil and Company paid into bank as capital. भी उसने पैसा लगाया है वो पैसा बैंक में जमा कर दिया, तो इंस्टेड ऑफ कैश यू विल डेबिट बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. Amount is 6 lakh. अब ये दोनों ही अकाउंट पर्सनल है, बैंक अकाउंट कैपिटल अकाउंट है अरुण गोविल का, तो रूल इज डेबिट द रिसीवर बैंक, क्रेडिट द गिवर अरुण गोविल, तो कैपिटल अकाउंट. जून 3. Purchase goods from Mukesh of the list price of rupees 2 lakh at 10% trade discount. So deduct trade discount. So 10% is 20,000. So it is 1,80,000. So purchase account debit to Mukesh. $1,80,000. Right narration, goods purchased at 10% trade discount. June 4. 1/4 of the above goods returned to Mukesh for not being up to specifications. तो 1/4 रिटर्न किया है, ये ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट हुई तो इसी का 1/4 ले लो, दैट विल बी 45,000. Now Mukesh is receiver, debit the receiver. Mukesh debit to, you will open purchase return account. It will be treated as income now. जब परचेज किया था एक्सपेंस है, वापस कर दिया, no need to pay, तो इनकम is to be credited. 1/4. Then June 6. Issued a check to Mukesh for the amount due to him after deducting 2% cash discount. अब मुकेश को कितनी पेमेंट करनी है? गुड्स खरीदा था 180, इसमें से 45,000 वापस कर दिया, दैट इज रिमेनिंग अमाउंट इज 1,35,000. तो इसमें पेमेंट कर दी चेक से 2% लेस करके, तो 2% कैलकुलेट करो, 2700. तो मुकेश इज नाउ रिसीवर, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर. मुकेश डेबिट जो अमाउंट उसको पे करना है 1,35,000. पेमेंट इज मेड बाय चेक, तो क्रेडिट बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट. कितनी पेमेंट करी? 135 माइनस 2700, तो दैट इज
130 to 300, 2700 डिस्काउंट रिसीव हुई, इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट रहा इनकम, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, देन ऑन June 7 we drew from bank rupees 2,50,000 for office use and 10,000 for personal use। जो ऑफिस यूज़ के लिए निकाले हैं, कैश इंक्रीज हुआ, डेबिट कैश अकाउंट। $2,50,000। जो पर्सनल यूज़ के लिए निकाले हैं वो ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स डेबिट। 10,000 बैंक से निकाले हैं तो बैंक इज गिवर, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर टू बैंक अकाउंट, 2,60,000। राइट नरेशन, मनी विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस एंड पर्सनल यूज। नेक्स्ट 10 June 10 purchased a machinery for rupees 1 lakh and spent 5,000 on its installation. Payment for the machinery was made by check, installation expenses paid in cash। तो जो भी एक्सपेंस है मशीनरी की कॉस्ट में ऐड करो, तो मशीनरी डेबिट 1,05,000। मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब जो मशीनरी की पेमेंट चेक से हुई है तो टू बैंक 1 लाख। इंस्टॉलेशन चार्जेस आर पेड इन कैश तो क्रेडिट कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट। ओके, देन 12 June 12 sold goods for rupees 1 lakh to Amar। Amar debit to sales 1 lakh। Goods sold to Amar। Then 13th Amar cleared his account by giving a check of 98,500। Check is immediately sent to bank। अब बैंक इज द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। चेक बैंक में जमा होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अमाउंट है 98,500। 1,500 कम रिसीव हुए, फुल सेटलमेंट है तो डिस्काउंट इज अलाउड, डिस्काउंट allowed, account debit to Amar, credit the giver, personal account 1 lakh। Right narration, check received and discount allowed। Now next date is 15th June। Purchase stationery for personal use 3,000, office use 5,000। अगर पर्सनल यूज के लिए कुछ भी खरीदा है दैट विल बी ट्रीटेड एज ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अमाउंट इज 3,000। जो ऑफिस यूज के लिए खरीदी है दैट इज बिजनेस एक्सपेंस, डेबिट में स्टेशनरी अकाउंट। $5,000 टू कैश, कैश इज पेड तो टू कैश अकाउंट 8,000। राइट नरेशन, परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस एंड पर्सनल यूज। June 20 now। Purchase land for rupees 2 lakh,
1% एज ब्रोकरेज पेड, ब्रोकरेज होता है कमीशन, कि लैंड खरीदी जिस प्रॉपर्टी डीलर को कमीशन पे करा है वो ब्रोकरेज है। एंड 15,000 एज रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑन इट, ये रजिस्ट्री पर लग गए तो सारे पैसे ऐड कर दो क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इंटायर पेमेंट इज मेड बाय चेक, सारा पैसा चेक से दिया तो एंट्री होगी लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। सी द अमाउंट, द कॉस्ट ऑफ लैंड इज 2 लाख। अब इस पर कमीशन है 1%, तो 1% ऑफ 2 लाख इज 2,000 और जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस वो है 15,000 ऐड, तो टोटल इज 2,17,000। ओके, एंड लास्ट ट्रांजेक्शन इज ऑन 30 June 30। Wages due to laborers 20,000, salary due to clerk 30,000। Due means outstanding, कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है तो आप डेबिट करोगे चाहे पेमेंट करी हो या ना हो। तो सैलरी डेबिट, फर्स्ट वेजेज है, वेजेस डेबिट 20,000। टू आउटस्टैंडिंग वेजेस 20,000 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग इज 30,000, तो सैलरी अकाउंट डेबिट 30 टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज 30,000। दिस इज द कंपाउंड एंट्री, आप अलग से एंट्री भी कर सकते हो। तो वी विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। सी, Question number 18. Journalize the following transactions of Rajkumar Traders, timber merchant। ये टिम्बर मर्चेंट है तो टिम्बर इज ट्रीटेड एज गुड्स फॉर हिम। जब भी वो टिम्बर खरीदेगा तो वी विल डेबिट परचेज, अगर वो टिम्बर सेल करेगा तो सेल्स क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वो जिस थिंग्स में डील करता है टिम्बर है तो टिम्बर विल बी ट्रीटेड एज गुड्स। See, first, purchase timber from Kuldeep Kumar for cash 2,000, credit 10,000, तो it is goods, तो you will debit purchase account, purchase account debit। अब उसने कुछ टिम्बर तो नकद खरीदी है, कैश इज पेड टू कैश अकाउंट 2,000, और जो क्रेडिट खरीदी है तो यू विल क्रेडिट द अकाउंट ऑफ सप्लायर, दैट इज कुलदीप कुमार 10,000, तो टू कुलदीप कुमार 10,000, टोटल परचेज इज 12,000, राइट। गुड्स परचेज्ड। नंबर 2, पेड टू कुलदीप कुमार इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 9950। अब 50 रुपये कम दिए हैं तो वो डिस्काउंट रिसीव होगी, डेबिट द रिसीवर कुलदीप कुमार, कुलदीप कुमार डेबिट सेम अमाउंट 10,000 टू कैश 9950 टू डिस्काउंट रिसीव्ड
50. Right? Narration, cash paid and discount received. Now third, paid rent in advance 10,000. अब ये जो रेंट है इट इज पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर एडवांस में, तो प्रीपेड रेंट यू विल डेबिट प्रीपेड रेंट अकाउंट. पेमेंट इज मेड इन कैश, रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट टू कैश अकाउंट. अमाउंट इज 10,000. फोर्थ, परचेज मशीनरी फॉर 1 लाख बाई चेक, कैरेज 2,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस 1,000 पेड इन कैश. असेट है तो सारे एक्सपेंस उसकी कॉस्ट में ऐड कर दो. 1,03,000 मशीनरी अकाउंट डेबिट. चेक से पेमेंट की है मशीनरी की तो टू बैंक अकाउंट 1 लाख. बाकी एक्सपेंस कैश में पे किए हैं टू कैश अकाउंट 3,000 ये. एंड फिफ्थ, परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 फ्रॉम गोविंद एंड सोल्ड इट टू मनोहर फॉर 65,000. तो यहाँ दो ट्रांजेक्शन है, एक बार परचेज किया फिर सेल किया. तो पहले गोविंद से परचेज किया तो एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद. $50,000. अब ये सेल किसको किया? मनोहर को 65,000 में, तो सेल की एंट्री कर दो. मनोहर डेबिट 65,000 टू सेल्स अकाउंट 65,000. राइट जनरेशन गुड्स सोल्ड टू मनोहर. ओके, तो फॉर टुडे दिस इज दिस मच. solve the two questions. In next video lecture we will continue the same chapter. Till then, goodbye, have a nice day.